Hello everyone, welcome back to our channel The Commerce Catalyst. Today we are going to start the admission of partner. So this question is related to admission of partner and which was asked in 2018, and probably this question will be asked in this year also. So this is the important questions. So question is Chandra and Damini were partner in a firm sharing profit and losses equally on 31st March 2017. Their balance sheet was as follows. Balance sheet of Chandra and Damini as on 31st March 2017. This is the related of admission of CBSE questions 2018. Chandar and Damni were partner. So the balance sheet of Chandar and Damni as on 31st March 2017, the liability side is given Shandi creditors 1,04,000, capitals is given Chandar 2,50,000, Damni 2,16,000, and assets at cash at bank is 30,000, bills receivable is 45,000, debtors 75,000, furniture 1,10,000, and land and building 3,10,000. On 1st April 2017, they admitted Alina as a new partner for one third. Alina, the first two partner, that is the old partner is the Chandra, first partner. Second partner is the Damini. Damini, and third partner admitted, that is the Elena. So first you have to understand that these two partners, that is the Chandra and Damini, that is the equal. So the profit sharing ratio is the half and half. This is the old ratio. Old ratio. Half and half. And Elena is joined. So this is the Elena is the one third. Yani one third of the part. So you have to understand this kind of question first, the adjustment. So you have to understand the adjustment. So on 1st April 2017, they admit Alina as a new partner, one third of share in the profit of the following conditions. So these are the conditions. So you have to understand the condition. The first condition was Alina will bring 3 lakhs as her capital and 50,000 as her share of goodwill premium. So half of which will be withdrawn by Chandra and Damini. Second adjustment is the debtors to be extended of rupees 5,000 were unrecorded. And third one, furniture will be reduced by 10% and 5% provision for bad debt and doubtful debts will be created on bills receivable and debtors. And 5 number condition, the value of land and building will be appreciated by 20%. And last, fifth number, there bring a claim against the firm of damages, a liability to the extent of rupees 8,000 will be created for the same. So prepare the revaluation account and partners capital account. So revaluation account and partners capital account. Revaluation account and partners capital account. Revaluation account and partners capital account. So first the revaluation account. Revaluation account. Revaluation account. You have to understand the
नेम रीवैल्यूएशन, इट मींस एडजस्टमेंट इन द, दोबारा से वैल्यू करना, रीवैल्यूएशन. So this is the ledger account, the format like a debit and credit, and first revaluation account. Revaluation account. So how to revalue? First, in the balance, now write the particulars date, the date, particulars amount, particulars amount rupees, date, particulars amount rupees, particulars date, particulars amount rupees. So adjustment is Elena will bring 3 lakhs as a her capital and 50,000 as share of goodwill premium, and a half of which will be drawn by Chandra and Damini. Debtors to the extent of rupees 5,000 were unrecorded. It means you have to understand कि how to revalue. अगर मान लो कि अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, अगर एसेट्स का वैल्यू अपसेट हो जाता है, बढ़ जाता है, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और अगर घट जाता है, अगर डिडक्ट हो जाता है, तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. तो यहाँ पे क्या है पहला, तो दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, पहला तो अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब ओपन करेंगे तब बताएंगे. अभी सेकंड क्या है कि debtors to the extent of rupees 5,000 were unrecorded. It means debtors का वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो 75,000 दिया हुआ है, लेकिन अभी क्या है, ये 5,000 से बढ़ रहा है. क्या बोला, debtors to the extent of rupees 5,000 were unrecorded. It means 5,000 से 5,000 से क्या है, एसेट्स बढ़ रहा है. तो एसेट्स बढ़ रहा है तो एंट्री क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट हाउ मच, 5,000. करेक्ट. अब क्या है, दूसरा है कि फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डॉटफुल डेब्ट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर. अब देखो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है उसमें क्या बोल रहा है कि फर्नीचर विल बी रिड्यूस, यानी फर्नीचर इज आल्सो एसेट्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या, कि जब एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जब एसेट्स डिक्रीज करेगा, घटेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. इन दिस केस क्या हो रहा था कि एसेट्स बढ़ रहा था 5,000 से, सॉरी यहाँ पे 5 लाख लिख दिए, 5,000 से यहाँ पे बढ़ रहा था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 5,000, 5,000. यहाँ पे हमने क्या लिखा, 5,000. ये 5,000 से इंक्रीज हो रहा था. अभी दूसरा में क्या बोला कि फर्नीचर जो है, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, यानी फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है. फर्नीचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बाई 10%. इट मींस फर्नीचर का वैल्यू क्या है, 1,10,000. तो इसका मतलब 11,000 क्या होगा उसका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट, शेयर अकाउंट हाउ मच, 11,000. 11,000 होगा ना, कैसे होगा, 1,10,000 है. अब इसको हम 10% से कर देते हैं, ठीक है. ये हो गया 11,000. अब क्या है उसमें सेकेंड जो उसी में है वो है
कि 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डॉटफुल डेटर्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, यानी बीआर और डेटर पे क्या होगा, 5% जो है वो आपको प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ टू डेटर है तो डेटर का वैल्यू इन द बैलेंस शीट, डेटर का क्या वैल्यू है, डेटर्स का वैल्यू है 75,000। लेकिन इसमें क्या हुआ है, 5,000 इंक्रीज किया, तो इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी इसको आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 9 अब क्या हो गया वैल्यू 80,000, यानी 80,000 इज अ डेटर्स का वैल्यू जो है वो 80,000 है। अब 80,000 जब ये डेटर्स का वैल्यू है तो इस 80,000 पे, न कि 75,000 पे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट, कि प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या देखा कि प्रोविजन कर रहे हैं हम कितने का, 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेब्ट will be created on BR and debtor. So debtors value is given 75,000 in balance sheet, but उसके एक एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया है कि डेटर्स टू द एक्सटेंड 5,000, तो इसमें 75,000 प्लस 5,000 80,000, न कि 75,000। अगर आप इन एग्जाम में अगर इस 75,000 पे 5% कैलकुलेट करोगे तो आपका बच्चों ये जो है गलत हो जाएगा, फिर आप ये सही करेक्ट रिवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। सो रिक्वायर्ड करेक्ट पिक्चर, तो करेक्ट पिक्चर अगर यहां नहीं निकाल पाएंगे तो बैलेंस शीट भी आपका करेक्ट नहीं निकलेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी करेक्ट नहीं निकलेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस भी करेक्ट नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब अगर एक जगह यहां गलत करेंगे तो इसका इंपैक्ट 3 प्लेसेस पे होंगे, 3 जगहों पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो प्लीज सावधान रहें कि ऐसे जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये छोटी चीजें हैं, लेकिन ये गलत करते हैं यहाँ बच्चे। क्या है कि फर्नीचर will be reduced by 10% and a 5% provision for bad and doubtful debts will be created on bills receivable and debtors, BR and debtors। तो हम अभी debtors पे कर रहे हैं, तो अब 80,000 आपका निकल गया, अब इसको 5% हम इस पे क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे प्रोविजन। इसका मतलब ये पीबीडी जो है वो हमारा क्या हो रहा है, एसेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक्चुअली वर्किंग नोट है, ये एक्चुअली में वर्किंग नोट है, हमको यहाँ पे करना चाहिए वर्किंग नोट, लेकिन मैंने आपको यहीं पे दिखा दिया। अब यहाँ पे एंट्री जो करोगे आप ना, वो ये करोगे टू पीबीडी, यानी प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब क्या है, अब हम इसमें दो पार्ट था, एक था क्या कि बिल्स रिसीवेबल पे 5% और एक डेटर्स पे, तो डेटर्स पे हमने निकाल दिया। वाई पहले डेटर्स पे निकाल दिया, बिकॉज यहाँ पे डेटर्स में 2 ना डालने तो बेटर है, बिकॉज ये कैलकुलेशन की पार्ट है, तो हम इसको कैलकुलेशन की पार्ट के जैसे ही रहने दें, और ये यहाँ पे नहीं वर्किंग नोट है, ये यहाँ पे वर्किंग नोट करके दिखाना चाहिए था, हमने यहाँ पे आपको समझने के लिए यहीं पे दिखाया। नो, अब हम पीबीडी के लिए निकल गया आपका 4,000 कैसे। अब हम आ रहे हैं कि बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है, तो बीआर का वैल्यू है 45,000, तो अब हम इसका भी क्या करेंगे टू बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू है 45,000, इसका भी हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, और 5% करेक्ट। नो, यानी 2,250 जो है इसका ये वैल्यू निकल गया, यानी बिल्स रिसीवेबल। एडजस्टमेंट को समझना बहुत जरूरी है, अगर आप एडजस्टमेंट को सही से समझते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ये हम क्या बोल रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन में पूछा है, जो सीबीएसई के क्वेश्चन ये 2018 में पूछा गया था, प्रोबेबली इस बार भी संभावनाएं हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही। तो एक ये हो गया। अब इसमें क्या है एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 3,10,000, ये अप्रिसिएशन हो रहा है।
तो जैसे ही बढ़ेगा, तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही बढ़ेगा तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी लैंड एंड बिल्डिंग, ये एसेट्स हैं, तो यहाँ लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका वैल्यू कितना था, 3,10,000। ये कितना से अप्रिशिएट हो रहा है, 20% से, 20% कर दिए, कर दीजिए इसको। अब कितना हो जाएगा ये, यानी हो जाएगा इसका 62,000। ये 62,000 क्या हो गया इसका, ये 62,000 इनका वैल्यू जो है अप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर बैलेंस शीट बनाना होता तो क्या होता, ये ऐड हो जाता, ये 62,000 इसमें ऐड हो जाता, ये 5,000 जैसे यहाँ पे ऐड हुआ, ऐसे ऐड हो जाता, और ये इधर का जितने भी चीज है वो लेस हो जाता बैलेंस शीट में। जब जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट आएगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी आपने क्या देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आया, कि एक तो आपने देखा कि डेटर्स जो है इंक्रीज कर रहा है 5,000 से, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इट मींस एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो एंट्री क्या होगा, व्हाट विल बी जनरल एंट्रीज, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर असेट्स डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा, देन एंट्री विल बी रिवर्स, उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड और रिड्यूस्ड बाय 11,000 हियर, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट ओनली। तो अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हमने डेटर्स का देखा कि पीबीडी हो रहा है, तो ये भी 4,000 से रिड्यूस हो रहा है, और ये कैलकुलेशन इसलिए जरूरी था बिकॉज अगर आप 75,000 पे लेते तो इसका जो वैल्यू है वो मिसमैच करता, तो इससे आपका बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट पड़ता, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे भी पड़ता, और प्रॉफिट पे भी पड़ता। रिवैल्यूएशन अकाउंट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी ये क्या हो गया, अब है नेक्स्ट जो है इसमें एडजस्टमेंट की एक क्लेम है, वो है 8,000 का। तो ये भी एक लॉस का एक क्लेम है, तो ये क्लेम कितने का है, 8,000 का है, करेक्ट। तो ये 8,000 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू डैमेज, मान लो डैमेज आया एक पे, तो डैमेज के लिए क्लेम किया हमने कितने, 8,000 का, ये 8,000 का। तो इससे हम आपका क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा यहाँ पे, जो आप इसको, अब इसके बाद आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है। हम यहीं पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल करके दिखाते हैं। इस पार्टनर में 3 पार्टनर होंगे, कौन कौन होंगे, एक तो चंद्र, ब्राह्मणी और एलिना। तो ये तीनों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों के लिए एक हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो आपको समझाने में सही होगा, या छोड़ देते ऊपर में ही करते हैं। पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ये 62,000 और प्लस 5 कितना हो गया, 67,000, 67,000। अब 67,000 में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 11 और 8 कितना है, 19 और 4 23 टू 25,250, यानी 67,000 माइनस कितना बोले थे, 11 4 15 एंड 19 23 टू 25 250, यानी 25 250 माइनस हो जाएगा। यानी ये हो गया 31,750।
41,750। अब ये 41,750 को हम क्या करेंगे, इक्वली है तो इसको डिवाइड कर देंगे। 41,750 को अगर हम 2 से करेंगे तो क्या होगा, 20 28,750, यानी 20,875 करके ये जो है 20,875 जो है ये किसको किसको मिलेगा, टू चंद्र और दूसरा पार्टनर कौन है, दामिनी। कितना था, 28,750। 28,750 कितना था, 28,750। ये 28,750 और 28,750 ये हमारा इसका प्रॉफिट निकल गया, यानी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इसी में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। ये दो ही पार्ट पूछा है एग्जाम में। हाँ, हालांकि इसमें हम बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तीन चीज मेन होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन इसमें हमें दो ही चीज पूछा है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बात करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे तीनों का पार्टनर्स का नाम लेंगे। ऊपर में लिख दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे लिख दिए डेट, अब पार्टनर में यहाँ पे लिख रहे हैं चंद्र, दामिनी और एलिना। एलिना करेक्ट। अब इसी तरह से यहाँ भी तीन, यहाँ ले लेंगे एलिना, दामिनी और यहाँ पे चंद्र। यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ एक डेट का बना देते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स और ये छंद। ये छंद इसी में अमाउंट रुपीज भी लिखते हैं, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, यहाँ पे अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। अब क्या करना है इसको, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें। क्या है कि चंदर ने 2,50,000 कैपिटल लेके आया था जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था। तो इन्होंने लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, हाउ मच, 2,50,000 and 2,16,000, 2,50,000, 2,16,000। इस समय में ये थे नहीं तो कोई नहीं, बस। उसके बाद क्या था कि इन्होंने कैपिटल लेके आया था कितना, एलिना 3 लाख। तो इसका मतलब ये बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 3 लाख।
करेक्ट। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद है कि फर्स्ट एडिशन की एलिना विल ब्रिंग 3 lakhs एज हर कैपिटल टू बैंक अकाउंट डेबिट टू। चलो, अब 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच भी विल बी ड्रॉन बाय चंदर एंड राम। अब देखो 50,000 जो है शेयर ऑफ गुडविल। अब मैंने इसके गुडविल के बारे में एक कहानी बताए थे पहले कि गुडविल है क्या। गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल मीन्स रेपुटेशन। और ये कैसे बनता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक आम का पेड़ होता है और एक बगान में आम का पेड़ लगाते हैं दो पार्टनर मिलकर के। अगर इसी का भी मैं अगर बता दूं, अभी मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को कि ये चंदर और दामिनी ये एक आम का पेड़ लगाया है, ये बिजनेस है। इस बिजनेस में उन्होंने 2.5 लाख और 2,16,000 कैपिटल से स्टार्ट किया ये बिजनेस, और ये बिजनेस इंप्रूव होता चला गया। और जब ये बिजनेस, ये आम का पेड़ जब ये फल देने लायक हो गया, उस समय में एलिना विलकम और वो आई और उसने बोला कि मुझे भी पार्टनर बना लो। तो इन्होंने बोला, क्योंकि इनका पहले का जो अग्रीड पॉइंट था वो था कि 50-50% पे हम लोग, इसीलिए बोला इक्वल रेशियो, मतलब 50-50%। अब जैसे ही तीसरा पार्टनर आएंगे तो वो इक्वल तो रहेगा नहीं, तो वो तीसरा पार्टनर क्या बोला कि हम 1/3 के लिए आपके हिस्सेदारी होंगे। तो जो उस दिन का, उस बिजनेस का, उस आम के बगान का जो एक रेपुटेशन है, गुडविल है, उसका कुछ तो वैल्यू होगा यार। तो उस दिन उस फर्म का, उस आम के बगान का जो वैल्यूशन निकाला गया, वो वैल्यूशन जो है वो हुआ 50,000, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इस 50,000 को कौन लेगा भाई? कौन लेगा? वही लेगा ना जो इसको इस रेपुटेशन तक पहुंचाया। ये तो सिंपल सी बात है यार। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझो तो ये तो एकदम कुछ है नहीं। आप कॉन्सेप्ट सही क्लियर करो, ये तो कुछ भी नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि अगर ये फर्म कोई चलाया, कोई चीज को, एक आम का बगान लगाया और उसमें बहुत मेहनत करके अभी आया, और तीसरा कोई फल जब होने लगा, अच्छा अच्छा आम देखा तो आ गया उसके पास, तो उस समय में उसे तो कुछ तो देना पड़ेगा ना उस दोनों को। तो उसको देने के लिए ये फर्म प्रीमियम गुडविल हुआ, और जिसका जो है 50,000 रुपया जो था शेयर ऑफ गुडविल था, जो इन दोनों को मिल गया वो है 25,000 और 25। करेक्ट। अब ये तो 25,000 का हो गया। अब आइए, अब इसमें क्या है एक चीज, जो हमने रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट निकाला था वो तो आएगा ही इधर। अभी क्या आएगा कि जो प्रॉफिट मिला इनको, इनको मिला, ये प्रॉफिट मिला चंदर को और इनको, जो पहले का जो कैलकुलेशन था वो वाला प्रॉफिट तो मिलेगा। तो वो कितना था? वो 2875। यहाँ पर सबसे पहले तो बाय प्रीमियम कर दो, गुडविल। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कर दें। 20,875, 20,875, चूंकि इक्वल था इसे 20,875, 20,875 मिल गया। ठीक है। अब क्या है, अब ये देखेंगे कि जो ये 20,875 करके मिला इनको, अब इसके बाद क्या है, इसमें एक टर्म दिया है जो आपने देखा कि एलिना विल ब्रिंग 3 lakhs एज हर कैपिटल एंड 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदन। इसमें से ये 25,000 का जो है हाफ विड्रॉन कर लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रीमियम। विड्रॉन कर लिया 12,500, 12,500। करेक्ट। अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर हम इसको करेंगे तो अब क्या होगा, ये कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट करके जो निकलेगा, अब इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो ये निकलेगा, जैसे ये 3 lakhs है, 3 lakhs। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना है, 2,16,000 और 25,000 कितना हो गया, 2,41,000, और ये 20,000, तो 2,61,875, 2,61,875, 2,61,875।
75। सेम ऐसे करेंगे तो 275, 295 हो गया, 2,95,875। अब इसको फिर ऐसे लिखेंगे, 2,61,875, 2,95,875। अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 12,500, 12,500, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 283, 283, 283, 875, 283, 875, 283 और ये 249, 283, 283, 375 और ये हो जाएगा 249, 375। करेक्ट, ये आ गया। अब इसमें से ये करेंगे तो ये क्या हो गया, 3 लाख। इसका मतलब ये जो लास्ट का जो है, ये न्यू जो है, ये टू बैलेंस CD हो जाएगा, यानी टू बैलेंस CD। ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा था, इस बार भी होने का प्रोबेबिलिटी है, तो इसे थोड़ा अच्छा से कर लीजिए, इसमें कोई बहुत ये चीज़ है नहीं। और ये एडमिशन का एक अच्छा क्वेश्चन है विथ एडजस्टमेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर का विथ एडजस्टमेंट एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आपको करना चाहिए। और इस पे दो कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा कि एक प्रीमियम कोडूल का कैसे डिफरेंशिएशन होगा, और जो एडजस्टमेंट है, तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट एडजस्टमेंट को पढ़ना है। जैसे इसमें मान लीजिए कि ये बोर्ड पे आपको थोड़ा सा ये हुआ होगा कि अलग अलग कराए थे, लेकिन अगर पेपर पे आप करना तो फर्स्ट क्या करना, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लेना, सेकंड पेज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल लेना और बैलेंस शीट नीचे में खोल लेना। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते जाना, एडजस्टमेंट पे पॉइंट का मार्क्स देते जाना और हैंड टू हैंड विदाउट डिले, यानी ये हमारा HHWD रूल फॉलो करना। HHWD का मतलब होता है हैंड टू हैंड विदाउट डिले। इट मींस कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री डाले वहां पे, साथ ही पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिए, उसका इंपैक्ट जो बैलेंस शीट में पड़ा वो भी डाल दिए, यानी एक ही साथ तीनों जगह में एंट्री डालते चले जाएंगे। यहाँ चूंकि बोर्ड पे हम उतना स्पेस है नहीं कि हम यहाँ पे तीनों समझाएंगे, तो इसलिए हमने सेपरेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताए। और इस क्वेश्चन में चूंकि बैलेंस शीट नहीं पूछा गया था तो नहीं बताए गए थे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बताऊंगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप माइंड में रख लेना जिसका नाम है HHWD, हैंड टू हैंड विदाउट डिले। अकाउंट्स में सबसे मस्त बात यही है मेरे दोस्तों कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्वेश्चन मींस पापा एंड मम्मी, जो बोले वही करो। तो पहले उसको पढ़ो, उसका एडजस्टमेंट को पढ़ो, और एडजस्टमेंट करते करते, जैसे इसमें बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यू ओपन द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने खोला, वहां पे जैसे ही एंट्री मारते चले जाएंगे एडजस्टमेंट का, साथ साथ में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी पुट करते जाओगे, तो आपको क्या होगा कि टाइम भी कम लगेगा। इस क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट लगना चाहिए, 5 मिनट्स ओनली। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, और फिर दोबारा से इसको हम एक और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताएंगे जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। थैंक यू।